Good morning, all of you. This is Mr. PJ Titus from Salem classes. Asked for the teacher of DCS International School and College. So today our discussing topic will be the bond of love. Okay, remember the topic will be the bond of love. This is for ninth class and also chapter number 9 and CBSE, and the book is Behive. Okay, so from this chapter already I have uploaded second part, but the first part was not clear, so that is why I couldn't uploaded that. So somehow, and if you have watched the second part, so I hope when you watch this first part video, that will be very effective, and that will be something very benefit for you. So let's begin. So if I ask you, do you love animals? Perhaps your answer will be yes. Most of us we love animals, and most of us we the tamed animal, and we have buffalo, cow, either cat, dog, etc. in our home. But have you ever think what will happen if we would tame a bear or a tiger? So it will be something difficult, and it will be something that it will be something very dangerous task for us. So we would never think to tame a bear or a tiger or a lion, isn't it? So I think I'm right. So before entering to this lesson, I would like to request you, please, if you haven't subscribed yet my channel, and please subscribe the channel and hit the bell icon also. So anyway, so let's begin. Everything is the decision is upon you. So it is my duty to teach you, and it is your responsibility to support us. So okay, so let's begin. So here the narrator, here the author, he says about his own experience. Okay, his own experience, how he got a beer, and how it was given to his wife, and what had happened, all the things. Okay, here we discuss. So today we will discuss paragraph number from 1 to 10, because in second part I have uploaded paragraph number 11 to last paragraph. Okay, so what the author says, I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. मैं इस कहानी को अपने बियर के साथ शुरू करता हूँ, जो स्लॉथ बियर है, जिसको मैंने क्या किया, अपने वाइफ को दिया, और मुझे वो चीज़ एक्सीडेंटली मिली थी। 2 years ago, मीन्स ये चैप्टर जब लिखा गया, और उससे 2 साल पहले की बात है। 2 years ago, we were passing through the sugarcane field near Mysore. People were driving away the wild pig from the fields by shooting them. Some were shot and some escaped. We thought that everything was over when suddenly a black salt bear came out, patting
इन द हॉट सन। तो ऑथर यहाँ पे कहते हैं 2 साल पहले की बात है, और जब ये लोग और एक शुगर कैन का फील्ड में होते हुए, आसपास होते हुए, मैसूर के आसपास वो पार कर रहे थे, तभी ऐसा देखा गया कि बहुत से लोग जो है वो वाइल्ड पिग्स यानी जंगली सूअर जो होते हैं उनको शूटिंग करते हुए यानी बंदूक से गोली मारते हुए भगाते हैं। कहीं तो बंदूक के गोली से घायल हो गए और कहीं तो भागने में सफल हो गए। तो ऐसे समय पर और बिल्कुल कड़ाके धूप में एक बिल्कुल ब्लैक कलर का एक बियर है जो क्या करता है, हमारा सामने आ जाता है। नाउ आई विल नॉट शॉट द स्लॉथ बियर want only, but unfortunately for the poor beast, one of my companion did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. तो मैंने तो सोचा कि एक बेचारा भालू है, बेचारा जानवर है, लेकिन एक दुर्भाग्य ये बीस्ट का ऊपर रहा कि मेरा जो कंपेनियन था है ना, मेरे जो दोस्त थे, उन्होंने इस बात को नहीं सोचा। मैंने जिस प्रकार का फीलिंग को रखा उन्होंने इस प्रकार का फीलिंग को नहीं रखा, एंड तुरंत को तुरंत उन्होंने क्या कर दिया और उस भालू को शूट कर दिया। सो उसी समय ही वो मतलब क्या हो गई, मर गई। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the pasture body. And then we saw it was a baby bear that had been riding on its mother's back. When the sudden shot had killed her, the little creature ran around its prostrate parent, making a pitiful noise. तो जैसे एक बड़ी भालू को क्या कर दिया गया, शूट कर दिया गया। ओके, उसको शूट कर दिया गया, और उसको शूट करने के बाद फिर क्या होता है कि मतलब उसी के बीच में से एक छोटा सा भालू वहाँ से उठ कर के आता है। जैसे ये छोटा सा भालू वहाँ से उठ कर के आता है, तो ये छोटा सा है, उसका माँ जो है मर गई, और इसी के चलते ये मतलब बिल्कुल पिटीफुल नॉइस कर रही है, यानी जो एक प्रकार का दर्दनाक की नॉइस है। जैसे किसी की माँ गुजर गई, किसी के पापा गुजर गए, तो किस प्रकार का फीलिंग होता है वो आप समझ सकते हो, जबकि वो कि बच्चा है। तो ऑथर यहाँ पे कहते हैं, आई रन टू अटेम्प्ट कैप्चर इट, scooted into the sugarcane field, following it with my companions. I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to search me with its long hooked claws. तो किसी भी तरह से ऑथर कहता है कि उन्होंने पीछा किया, ठीक है ना, उन्होंने पीछा किया। तो ये छोटा सा जो भालू है वो क्या करती है कि वो पहुंच जाती है उस शुगर कैन की जो खेत में। फिर उसके बाद किसी भी तरह से उसको वो ग्रैब कर लेते हैं, यानी पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद और उसका नेक में पकड़ लेते हैं, और वो मतलब कोशिश करता रहा कि क्या करने के लिए, कि खुरचने के लिए, है ना, कि खुरचने के लिए अपनी हुक्ड क्लाव को द्वारा ऑथर को। लेकिन उसके बाद ऑथर क्या करते हैं, ये 5th नंबर पैराग्राफ हमको बताता है। वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स वी had brought, and when I got back
to Bangalore. I duly presented it to my wife. She was delighted. She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cub was a boy, she christened it ब्रोनो। तो उसके बाद फिर क्या होता है, ऑथर इसको गनी बैग में उसको क्या कर देते हैं, मतलब भर देते हैं, उसको बांध लेते हैं। किसको? ये बियर को। बांधने के बाद फिर उसको क्या करते हैं कि वो चले जाते हैं, और जैसे उनका बेंगलोर जाने का समय होता है, फिर वो बेंगलोर चले जाते हैं, और जाते जाते इसे क्या करते हैं, वो अपनी वाइफ को क्या करते हैं, उसको वो देते हैं। और अपनी वाइफ को वो देते हैं तो क्या होता है कि वाइफ उसको दे करके बहुत खुश हो जाती है ना। बड़ी ताजुब की बात है कि डरने के बजाय या तो फिर चिल्लाने के बजाय वो क्या होते है कि खुश हो जाती है उसे लेकर के। तो एनीवे ये सबके अपने अपने हैबिट होता है। तो फिर बहुत खुश होती है, दे एक मतलब लाल कलर का एक ये रिबन है, कलरफुल रिबन जो है उसको उसका गले में बांध देती है। बांधने के बाद वो देखती है कि ये तो लड़का है, इसलिए उसका नाम को उसने क्या क्या रख दिया, ब्रूनो रख दिया। फिर उसके बाद ब्रूनो को क्या खिलाते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। क्या खिलाते हैं, क्या खिलाते हैं, ये सभी हमको 6 पैराग्राफ से आपको देखने को मिलेगा। ब्रूनो soon took to drinking milk from the bottle. It was but a step further, and within a very few days he started eating and drinking everything else. तो उसको जैसे कि और दूध पिलाया गया बोतल से, और फिर धीरे धीरे उसने क्या किया, खाना खाना सीख लिया, और जो भी कुछ उसको दिया वो सब कुछ वो खाने और पीने लगे। And everything, it is a right word, for he ate porridge made from any or ingredients, vegetable, fruit, nuts, meat, especially pork, curry, and rice, and regardless of condiments and chilies, bread, egg, chocolate, sweet pudding, आइसक्रीम एक्सेट्रा। तो ये सभी जो मैंने खाने का नाम को यहाँ पे पढ़ के सुनाया आपको, ये सब कुछ उसको खिलाने के लिए दिया गया। और साथ ही साथ उसको ड्रिंक के लिए क्या क्या दिया जाता है, मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एंड aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, and in fact anything and liquid, it all went down with release. सब कुछ, ये सब कुछ उसको खाने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ तक कि उसको तो बियर और लिक्विड, मतलब क्या कह सकते हैं, अल्कोहल, जो नशीली, जो मतलब एक प्रकार से आप दारू भी कह सकते हैं, ये तक उसको दे दिया गया। तो बड़ी खुशी के साथ ये सबको वो क्या करती है, पीती है, और ये सब चीज़ को वो हजम भी कर लेती है। The bear became very attached to our 2 Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our Bangalore. He was left quite free in his younger days, and spent his time in playing, running into the kitchen, and going to sleep in our beds. तो जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, और जाहिर सी बात है कि वो क्या कर सकता है, मतलब एक मतलब अटैचमेंट जो है उसका बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकता है, और ऐसा ही यहाँ पे होता है। तो ऑथर के घर में 2 अल्सेशियन डॉग होते हैं। ये अल्सेशियन डॉग के साथ भी उनका बहुत ही मतलब घनिष्ठ रिश्ता होता है। खाली उतना ही नहीं, वो बेंगलुरु के आसपास में जो बच्चे थे उन सभी के साथ तो प्ले करना,
टाइम स्पेंड करना, रनिंग करना, है ना, ये सब वो होता रहा। और ऑथर कहते हैं कि वो तो उनके किचन में घुस जाता था, फिर सोने के टाइम जब होता था तो उनके बेडरूम में ही आकर के ये सो जाता था। सो वन डे एन एक्सीडेंट befall him. I put down poison barium carbonate to kill the rats and mice that had got into my library. Borno entered the library as he often did, and he ate some of the poison. Paralysis set into the extent that he could not stand on his feet, but he dragged himself on his stumps to my wife, who called me. I guessed what had happened. Up I rushed in the car to the vet's residence. A case of poisoning, Tambir barium carbonate. What to do? So here एक एक्सीडेंट उसके साथ हो जाता है। सो ऑथर जो अपने घर के जो लाइब्रेरी है वहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि एक मतलब चूहे को मारने वाले कुछ जहर को वहाँ पर उन्होंने रखा था, जिसको बरियम कार्बोनेट टाइप का जहर कहा जाता है। तो वो यहाँ पे रखा हुआ था। और यूजुअली ब्रूनो तो क्या करता है, घर के इधर उधर हर तरह से वो घूमता है। अगर कोई पालतू कुत्ता होता है घर पे तो वो तो भिन्न भिन्न सारे रूम में जा सकता है, और सभी रूम में जा कर के वो क्या कर सकता है कि बैठ सकता, उठ सकता। उसी प्रकार ये सभी रूम में जाता है ये, ठीक है ना, ये सभी रूम में जाता है। तो ऐसे वो लाइब्रेरी में भी आ जाता है। जैसे वो लाइब्रेरी में आता है तो होता है क्या है यहाँ पे कि उसी लाइब्रेरी में जैसे वो पहुँचता है तो वहाँ पे कुछ जहर वहाँ पे रखे हुए थे, जो खास करके रैट को देने के लिए। और उसी चीज़ को वो क्या करता है, मतलब खा जाता है, और खाने के बाद बिल्कुल पैरालाइज की कंडीशन में आ जाता है, अचेत हालातों में पड़ जाता है, और वो खड़ा भी नहीं हो पाता, ऐसा की कंडीशन में होता है। तो तुरंत क्या होता है कि ये दृश्य को ऑथर की वाइफ ने देखा, और ऑथर की वाइफ ने देख करके तुरंत उसको कॉल किया, और उसे ऑथर को समझ में आ गया कि आखिरकार क्या हुआ होगा और यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है। उसको पता चल गया कि उसने चूहा मार के लिए जो दवाई रखी थी और जो जहर रखा था, और वही चीज़ उसने खा लिया। तो जैसे उनको पता चल गया कि भाई ऐसा हो सकता है, उन्होंने तुरंत क्या किया, अपनी कार को लिए और ब्रूनो को पैक करके वो चल दिए। कहाँ पर? वो चल दिए सीधा सीधा वेट के रेसिडेंस पर। जैसे वो वेट के रेसिडेंस में जाके पहुंचते हैं, तुरंत वही कहते हैं कि पॉइजनिंग टैम्बियर एंड बरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। बरियम कार्बोनेट हमारा घर का जो भालू है उसने उसको खा रखा है, तो हम क्या करेंगे। Out came his medical book and favorites and a reference to index began. What poison did you say, sir? So the veterinary यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि आपने कौन सा पॉइजन के बारे में आपने मुझे कहा है सर। तो बरियम कार्बोनेट। ओके, सो ये पॉइजन का नाम बरियम कार्बोनेट दिया। यस, बी बा barium salt, barium carbonates, and symptoms paralysis and a treatment injection of just a minute, sir. I will bring my syringe and the medicine. तो वेट उनको पूछता है कि आपने कौन सा जहर की बात कहा है। तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि वो बरियम कार्बोनेट। तो ठीक है करके उन्होंने अपनी जो इंडेक्स को देखा, और देखने के बाद उन्होंने प्राप्त कर लिया कि आखिरकार इसके इलाज क्या हो सकता है। तो उन्होंने खुल के कह दिया कि भाई उसको तो इंजेक्शन लगेगा और कुछ मेडिसिन देना होगा। उसका सिम्टम जो है पैरालिसिस वाली कंडीशन हो जाता है, जो भी कोई उसको खा लेता है।
A dash back to the car, Bruno still floundering and about on his stumps, but clearly weakening rapidly, some vomiting, heavy breathing with having flanks and a gaping mouth. तो जैसे समय बढ़ता जा रहा है और ब्रूनो की हालत उतना ख़राब होता जा रहा है। अब ब्रूनो को क्या हो गया कि ब्रूनो अब ऐसा कंडीशन में आता है कि उसका माउथ जो है गैपिंग होता है और लगातार वो वॉमिट करता जाता है। लेकिन अब डॉक्टर क्या है, उसको तो थोड़ा टाइम लगेगा अपने अरेंजमेंट करने के लिए, उसको जो सामान चाहिए वो लाने के लिए। तो फिर वो अभी क्या करता है, तो वो आ जाता है वहाँ पे, मतलब अपना चीज़ को लेकर के कहीं गया नहीं होता है, लेकिन इंजेक्शन को ढूंढने में निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर वो अब तैयार हो जाता है। सो होल्ड हिम एवरीबडी इन गोज द hypodermic and Bruno squelch. 10 cc of antidote enters his system without a drop being wasted. अभी 10 सीसी का एक इंजेक्शन उसको दिया जाता है जो कि बिल्कुल किसी भी तरह से क्या नहीं है, बिल्कुल किसी भी तरह से मतलब एक भी बूंद उसका नष्ट नहीं हुआ। तो ये इंजेक्शन देने के बाद लेटर कंडीशन अनचेंज्ड, अनदर 10 cc इंजेक्टेड 10 minutes later और breathing less and Satros Bruno can move his arm and leg a little, although he cannot stand yet. 30 minutes later, Bruno get up and has a great feed. He look at us or disdainful, as much as to say, what's barium carbonate to a big black bear like me? Bruno is still eating. तो उन्होंने यही कहा कि जैसे, और डॉक्टर क्या करता है, अपने सिरिंज को लेता है, वेटनरी डॉक्टर जो है, तो 10 मिनट पहले उन्होंने लगाया 10 सीसी का, फिर उसके बाद देखा कि भाई अभी तक कोई भी हिलना डुलना न कोई भी मूवमेंट वहाँ पे नहीं दिखता है। तो ऐसे समय पर फिर 10 मिनट के बाद उन्होंने और एक इंजेक्शन उसको लगाया, तो अब थोड़ा सा हाथ पैर हिलना चालू हो गया। फिर इस प्रकार से आधे घंटे के बाद वो उठ जाती है और बिल्कुल ऐसा मानो, ऐसा होता है कि जैसा मान लो उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। फिर उठने के बाद और उसको खाना खिलाया गया और जो भी पानी पिलाया गया, जो भी कुछ उसके साथ करना चाहिए था, है ना, और उसके साथ वो सभी कुछ उन्होंने किया है और अभी वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, बिल्कुल अच्छा हो गया और उसी के साथ साथ वो अभी वापस अपने घर पे चला जाता है। तो 11 नंबर और पैराग्राफ से मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा हूँ, फिर भी मैं कह सकता हूँ कि ये 11 नंबर पैराग्राफ में ऐसा लिखा है कि एक दिन की बात है जब ऑथर क्या करे थे कि ऑयल का एक पीपा जो है ना, उन्होंने कहीं रखा था, जो गाड़ी से जो निकलते हैं, मतलब जली हुई ऑयल है, उसको कहीं रखा था। लेकिन ब्रूनो ऑलरेडी खावड़ा था। मित्रों, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि रात की 12 बजे के समय है और इस समय में नींद को मार करके रिकॉर्डिंग करना है, क्योंकि दिन में मेरे पास समय बहुत अभाव होता है। फिर भी रातों रात हर दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो ऐसा कर करके सेंड करता हूँ, तो थकावट होती है, हावस आती है, तो इसलिए नहीं सोचना कि भाई ये तो आलसी है। तो एनीवे, तो यहाँ पे हम एक चीज़ को देखते हैं कि वो मतलब वही जो जली हुई ऑयल रखा हुआ था उसको भी उसने क्या कर लिया, पी लिया। तो इसके आगे का जो पार्ट है हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। सो अगेन आई से यू,
if you haven't subscribed my channel, please subscribe it and press the bell icon. Thank you. May God bless you. Have a good day or good night, whatever, because this is night time, so I can say you good night. Thank you. May God bless you.